Now we are moving towards the Indian Express explanation. First article is talking about India sends medical supplies, disaster relief, aid to war-torn Gaza via Egypt. So we have seen that India has always supported the two-state solution of between the Israel and Palestine. And here also, India unequivocally condemned the Hamas attack on Israel, but at the same time, India supported the Palestine cause. So here we see that India supports the humanitarian aid to Palestine. Um, Regarding Rath Prabharis, Kharge have written to Prime Minister on politicization of bureaucracy and forces. So, Pravesh, hello. So I'm asking that district Rath Prabharis, where this senior bureaucrat have been roped in to showcase the government achievement. Is it Sorry, Yoshi, can you repeat, please? Your voice is not clear. regarding the government roping in of the senior bureaucrats as a district Rath Prabharis for the Yatra to showcase the government achievement? So I think this is unethical practice. This is lawful or not? I'm asking. No, I won't say that this is not lawful, because if Lawful है government लेकिन is unethical हो सकता है. no, I will not say कि, it is unethical even. I mean, but yes, there is a number of biasness which is reflected here, because the government should not use the word BJP government's achievement. The government should use national government's achievements. So I think every government use the bureaucrats in making them prabharis of the government socio-economic governance. But yes, using this name and terminology is somewhat wrong here. So Okay. particularly, this is not the statement of government. This would be the statement of the editor who has written this article. The statement of the government would be the national government, the Yeah, India government. exactly. Yes, We have हाँ already discussed. भी यही रहेगा कि बेसिकली पॉलिटिकल टर्म्स ना यूज करके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Next, we have already talked about the India's foreign minister's statement on India's sought for diplomatic parity and also the Canadian interference in our internal matter. So these two things our Jaishankar minister have talked about, that it is violating the Convention of Vienna. So diplomatic parity, important keyword. Regarding of the one more fact related to this, there are 193 countries who are signatory to this Vienna Convention. So we can say कि all the members of UN, are they really signatory to this or not? So I was just cross-checking this thing. So it is like, yes, this statement is true. Further, India's exports both the non-basmati and basmati rice. So non-basmati is around 12 lakh metric ton. It is export after the export ban. Then it has been approved that export of 12.52 lakh metric ton through NCEL to UAE, Bhutan, Mauritius, Nepal, etc. So we will see the data of the non-basmati white rice. It has been at a steady rate of 5.69 lakh metric ton. तो दो राइस होता है, नॉन बासमती एंड बासमती राइस जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है. करेंटली देयर हैज बीन बैन ऑफ नॉन बासमती राइस, इसलिए घट के ये. I think, Oshik, I would like to add one thing, that with Mansi, I was talking one day that how we can provide, the basmati taste to the poor section of country by providing, the nutrition qualities and by adding the similar kind of qualities by food fortification, especially in the rice. But for the poor, most important thing is nutrition. उसके बाद ही हम लोग टेस्ट की बात कर सकते हैं. That is what I'm saying. I mean, the rice is similar for kind of nutrition which basmati possess, the same kind of nutrients we can fortify it in the normal rice, which is provided by the FRP shops. but the basmati rice is targeted towards the
middle class, upper middle class, and it is not for the open sale market or for the Food Corporation of India to take up. तो Basically, different है ना दोनों. we can talk about कि बासमती राइस को और अफोर्डेबल कैसे कर सकते हैं. अफोर्डेबल के लिए बासमती राइस है ही नहीं ना. उसको उसका अभी टारगेट दो है. अभी नहीं, बट हाउ वी कैन मेक इट अफोर्डेबल, वो चीज पे बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर कि इंडो जर्मन रिलेशनशिप, इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड करेंटली देयर आर 43,000 students that have become the major blue card for the Germany higher education. Then for the Indo-German strategic partnership, it has gone back to 20 plus years, and India is a major trading partner with Germany in the European Union after the exit of the Britain from the European Union. And I we think can also talk about the trade sector also. So in trade also, we are seeing that specifically India is having higher trade, or it is exporting comparatively more than countries like Vietnam and Korea to Germany. And we are again more engaged in terms of the mineral oil exports, which we are exporting to Germany. Apart from this, there is And growth one more thing, in machinery and that India is highly dependent on Germany for its automobile import. So that is one. Like we have Audi, BMW, and Mercedes. So these are the German brands which are in great demand in the Indian market. but I would like to add one more point, that Germany is known for higher manufacturing quality and sector. India needs to learn about it. And MSME sector जो है जर्मनी में, it is very targeted oriented, very high quality, और इसको यूज कर सकते हैं. ऐसे मर्सिडीज, डैमलर ब्रांडिंग एरियाज में भी जर्मनी आके. even तो इंडिया के पास how we can reduce the imports, or specifically automobiles as highlighted by Pravesh. So therein we are going for again the production, or we are having the dedicated semiconductors mission also. Semiconductor chips and the fab chips, we are setting up fab units. But Mansi, Yes. how this is gonna reduce the import of luxury cars from Germany? Because again semiconductors जो है, जो चिप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो अगर उनकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी होगी, तो वी कैन से कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, हम डोमेस्टिकली कार्स भी, ऑटोमोबाइल्स भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे तभी, अगर हमारे पास डोमेस्टिक या सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स होगी, तभी होगा वो. तो इट इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. और फर्दर मानसी, जो लग्जरी प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में, it is also limited. I think only 40 to 50,000 of luxury cars are sold each year. तो उसके हिसाब से भी इंडिया में तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा लास्ट में. लग्जरी कार्स नहीं, ये मैं वो तो छोटा नंबर. जनरल ऑटोमोबाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ. हाँ सिर्फ हाँ. And regarding the next article, among the 174 candidate in Mizoram, only 16 are women, and 40-member assembly currently does not have a single woman legislator. So this showcases the challenges faced by the women legislator, especially in the MLA, MP, etc. And the important term is higher class ceiling, जो हम लोग मानसी डिस्कस कर रहे थे पहले. So I think a new women representation bill will help to increase the representation of women in the percentage of MLA and MPs. तो उसमें बढ़ सकते हो. But Oshik, I have a question that we already have 33% reservation for the women in the legislature and the state as well as at the central level. कहाँ पे? नहीं, लोकल लेवल पे 33%. 33% सिर्फ लोकल लेवल पे है ना, स्टेट में कहाँ? स्टेट में नहीं हो. इट इज By this bill I'm saying. हाँ, तो अब तक हो सकता है. ऐसे ये बताया ना कि this women basically women faces higher class ceiling. It's word okay, we have to keep in mind. और दूसरा है कि उनको तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के लिए वो एक जो बिल आया है उससे बढ़ सकता है उनका रेपुटेशन आने वाले समय में. तो वो बात हो रही. और साथ ही साथ अवेयरनेस भी होना चाहिए पीपल का अगेंस्ट कि वुमेन काम कर सकते हैं. वो भी दिक्कत हो जाता है रूरल एरियाज में.
खास करके मिजोरम, नागालैंड, पाकिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सूरत डायमंड वर्कर। तो डायमंड इंडस्ट्री में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड। सूरत एम्प्लॉयज अराउंड 6 lakh worker, polishes 8 out of 10 diamonds, 80% of total diamonds in the world are being polished in Surat. So India is a major diamond exporter around the world, and over the last few years, the import and as well as the export has been decreasing to after post pandemic. तो ये एक इशू है और इसमें सेकंड डायमंड इशू इंडस्ट्री एक में। ये भी है कि सिंस अगेन ग्लोबल डिमांड भी कम हो रही है, हाँ, तो दो मेजर डिमांड जिन कंट्री से आती है वो है यूएस और चाइना। सो ये वहां पे स्लो डाउन की वजह से एक और तो रशिया से भी, इम्पैक्ट रशिया हुआ है। से भी, हाँ, रशिया भी है, रशिया बट यूक्रेन। मोस्ट प्लेयर्स जो है यूएस और चाइना है जो डायमंड्स की डिमांड की अगर हम बात करते हैं। सेकंड रीजन इज द लैब ग्रोन डायमंड। सो लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो कंपैरेटिवली चीपर हैं टू दीज ओरिजिनल डायमंड्स। सो अगेन प्राइस ऑलरेडी लो चल रहा है, डिमांड ऑलरेडी कम है, एंड देन लैब ग्रोन डायमंड्स की वजह से जो कंपटीशन हो रहा है तो उससे चीजें थोड़ी और वर्स हो रही है फॉर द टाइम बीइंग। यस, this one we have already talked about that SC Can take a have vote if it not, is हाँ, an apt. मतलब द आर्टिकल इज सेइंग दैट जैसे ही हमने कहा था कि अनलाइक द नवतेज सिंह जौहर केस which have anonymously ruled the decriminalization of the homosexuality with 3:2, और वहां पर भी जो विजडम है इट वाज गिवन टू द कोर्ट रिगार्डिंग द हेटेरोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, लेकिन अभी ऐसे नहीं हुआ। तो इट शोज दैट मेजोरिटन का मेजोरिटी का मोरालिटी है, इट इज लाइक कमेंट्री है बेसिकली उन पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आर्गुमेंट है। और ऐसा आपने जो कहा था वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। ऋषि सुनक। I think the most important term here is positive secularism. पॉजिटिव सेकुलरिज्म है क्या, प्रवेश? So the crux of positive secularism is the religion and the states work in coherence. If the state is doing something bad, so the religion has the powers to reform and to provide the pressure to reform its socio-economic policies. And at the time, the religion is not performing as per the modern constitutional precedents. So the executive or the government is also competent enough to reform the religious sphere where it is going wrong. So यहाँ पर ना केवल दोनों एक दूसरे को रिफॉर्म करते हैं, लेकिन जब भी एक दूसरे को हेल्प करने की बात होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सो दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो कुछ एग्जांपल अगर पॉजिटिव सेकुलरिज्म का? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का जैसे एग्जांपल आप ये देखिए कि किस तरीके से जो वेस्ट है वहां पर कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी, जैसे कि सबरीमाला एक हमारा रिलीजियस टेम्पल है केरला में, अमरनाथ हमारा जम्मू कश्मीर में है, हाँ, ठीक। वैष्णो देवी है। तो इस पे यहाँ पर मेंटेनेंस, उसके बाद जितना भी जो उसकी सिक्योरिटी अपरेटस है सारे मंदिरों का, वो किस तरीके से स्टेट इंश्योर करता है, उसके रिटर्न में वो फीस वगैरह भी लेता है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि मैंने एक दिन मानसी के साथ बात करते हुए बताया था कि जो नेशनल गंगा रिवर प्लान है हमारा, जो उसका जो बेसिस है वो रिलीजन ही है। किस तरीके से जो रिलीजियस है, किस तरीके से जो इंडियन रिलीजन है, उसने एक प्रेशर ग्रुप बनकर गवर्नमेंट को ये बोला कि आप जो है गंगा की निर्मल धारा को बचाने के लिए काम करें, आप उसका ई फ्लो मेंटेन करने के लिए कोई प्लान बनाएं, आप उसकी क्लीनलीनेस को ध्यान रखने के लिए कोई प्लान बनाएं, जिसका जो रिजल्ट था और कल्मिनेशन था कि हमारे यहाँ आज के टाइम पे गंगा इस
maintaining its e-flow because of the various government-led efforts. If you want to add, Mansi, you can add. No, We can move forward. nothing, Washington, we can move forward. Next is the Women Reservation Bill. The question is why women need reservation and whether for seats or in parliament. तो जो कोटा सिस्टम है इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. तो यहाँ पर वही आर्टिकल जस्टिफाई करना चाह रहा है कि वुमेन नीड रिजर्वेशन और कोटा एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन है. कैसे? फर्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग मैंडेटरी कोटा इज इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन. पहला तो वो हो गया. एंड दूसरा कि जहां पर वुमेन मार्जिनलाइज सेक्शन में से रहते हैं क्योंकि मेल का डोमिनेटेड ज्यादा है, largely dominated by male and masculinist politics, तो वहां पर women can bring us new change in the system. और I think औशिक जो मैं देख रहा वुमेन क्या रिजर्वेशन की बात इम्पोर्टेंट हम और कर रहे हैं एरियाज आज है. के टाइम पे, देखो जो वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल आया है, this is my projections that this is gonna improve the overall conditions of the upper middle and the elite section of the women, not the women who are working in the labor industries in the gig economy. So मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो करने की जरूरत है. फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इसी के साथ साथ जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल और मोलेस्टेशन के खिलाफ हमारे जो नियम या कानून है उनकी रोबस्टनेस, उनकी स्ट्रेंथनिंग, और इसी के साथ जो हमारा जो वुमेन है उसको इक्वल पे देने की भी बहुत जरूर आवश्यकता है. और रिजिड इंस्टीट्यूशंस जो माने जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कि फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने भी वुमेन जो है कमांड जो है बनानी शुरू की है. पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप देखिए किस तरीके से जो वुमेन है वो कॉन्स्टेबलरी से लेके और आईजी तक की पोस्ट पर अब रिक्रूट करी जा रही है. तो मल्टीपल स्टेप्स लेने की जरूरत है. I agree with you, की Pravesh, बात करते हैं. on your points, but I disagree that जो रिजर्वेशन बिल है it will only empower the our urban class and higher urban class people. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर लोकल बॉडी से अब देखा जाए रिजर्वेशन, वहां पर SC ST और OBC वो भी women है, they are also taking part into the administration. तो वहां से हो सकता है कोई लोग वहां से भी फिर लोकल बॉडी से अब स्टेट में जाएंगे, स्टेट से फिर MP बने. तो ऐसा ही पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि आप खाली हायर अर्बन क्लास का बात कर सकते हैं. तो वैसे ही बता रहे कि वुमेन हैव नहीं, ऑलरेडी. मेजर नहीं बोला मैंने. हाँ. ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, रिप्रेजेंटेशन में तो काम करेगा ही, लेकिन मेजरली मैंने बोला. This article says that women has been a part of the freedom struggle, like during the civil disobedience movement, non-cooperation movement, खादी and स्वदेशी and the महात्मा गांधी. उसके बाद फिर द वुमेन का जो इशू है राइट फ्रॉम 1890s, जहां पर मैरिज का एज कितना होना चाहिए, तो एज ऑफ कंसेंट बिल आया. उसके बाद फिर शारदा एक्ट आया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर एजुकेशन, वोटिंग राइट्स 1920s के समय में यूरोप और US में आया. फिर अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये सब जो वुमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशन था वो भी अपना देश में आया. उसके बाद फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट वेयर द वुमेन वेर गिवन 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. तो वहां से जो वुमेन का एम्पावरमेंट स्टार्ट हुआ वो फिर धीरे धीरे बाकी जगह पर्कुलेट किया, और वुमेन आज हाई पोजीशन पे है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा. और दे आर मेकिंग प्रेजेंस इन ब्यूरोक्रेसी, एविएशन, स्पेस, आर्ट्स, लिटरेचर. जैसे हम लोग देखते हैं UPSC में भी वुमेन टॉपर रहती है, और इसरो में भी वुमेन ने एक रोल प्ले किया. साथ ही कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट में भी वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल है. तो इसे एंड इसी के दिखाता है साथ कि 2-3 एग्जांपल्स और मैं हाँ. देना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सूडान में जो हमारी UN पीस कीपिंग फोर्स थी उसको कमांड करने वाली भी एक लेडी थी जिसको प्रेसिडेंट हाल अवार्ड से फिलहाल नवाजा गया है. भेजा गया था हाल फिलहाल में. तो दिस showcases that we need the value of base of 3 engagement, emancipation, empathy. तो this values women bring on the table, और इससे एक इंडिया एज अ ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प हो सकेगा. आपको मान से कुछ ऐड करना है तो फिर आगे बढ़ो. I would just add up from the perspective of ethical conduct also somehow कि
उस चीज को रिफॉर्म करने में भी थोड़ा जो इम्पैक्ट रहता है, आई बिलीव कि वुमेन कैन बी, दे कैन लीव अ मच स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट when it comes to practicing ethical conducts. Well, I think that depends on the individual to individual. We should not genderize this thing. That is true, but नहीं कहीं ना कहीं एक वो रहता है, उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। प्रवेश, और दूसरा बात है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के बाद ही उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द स्क्रूटिनी वो बढ़ जाएगा। ये भी एक दूसरा एक व्यू पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी मेल सेंट्रिक सिस्टम है तो जो स्क्रूटिनी ऑन मेन है हायर एज कम्पेयर टू विमेन इन द सिस्टम और कहीं पर भी, क्योंकि हर बार वो बात उठता है, वो धीरे धीरे वही बढ़ेगा। तो थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ उसके बाद फिर ट्रेंड रहेगा जेंडर न्यूट्रल की तरफ जाने का। प्रवेश तो नहीं, ये बात मैं आपकी एग्री करता हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली भी ऐसा बोला जाता है कि आवर वुमेन पार्टनर्स आर मोर मैच्योर देन मेन, तो अच्छी बात है। नहीं, वो एज का बात हो रहा है, वो लाइफ टाइम नहीं है, वो एज का 21-18 का बात होता है जो आप बात करते हैं उसका। और दूसरा कि एक इससे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, प्रवेश बोलेंगे कि ये क्या बताता है, जैसे एक टर्म किस पे रिलेटेड है बेसिकली। अगर ये स्टेटमेंट है, Hamas attack has drawn attention to periods of over reliance on technology. तो if we want to connect this term with Indian defense security, तो क्या आप बोलना चाहेंगे इसमें प्रवेश? 2 लाइन बस। अभी तो मैं ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा, आप ही बोल दीजिए। नहीं, सिंपल है कि जो ओवर रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, मतलब क्या दिखाता है कि जो इजराइल का ओवर रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी था, आयरन डोम, फिर होता है ना लेजर हो गया, वो हाँ 100% कहीं वो ना कहीं सक्सेसफुल रहा है, 100% सक्सेसफुल। और कहीं से जब अब इंडियन डिफेंस सेक्टर से कनेक्ट करने की बात करते हो तो कुछ क्वेश्चंस इंडिया के लिए भी है, कुछ लेसन्स इंडिया के लिए भी हो सकते हैं कि डू वी आल्सो नीड सर्टेन काइंड ऑफ एन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम इंस्टॉल्ड एट आवर बॉर्डर्स आल्सो और नॉट, तो उसका कितना अगेन रेलेवेंस है फॉर द इंडियन सिक्योरिटी। Like the article is mentioning that Israel has over reliance on systems such as pan, tilt, zoom camera, high imaging camera, tracking device, इसमें iron मुझे एक चीज dome, बोलनी है। missile, etc. तो इंडिया पास भी comprehensive border management system है, लेकिन it is also mixed bag। ऐसे इंडिया के पास दोनों है कि आप टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे और जो आपने मानसी बोला ना CRT जो रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, वो भी इंडिया के पास है। वो बॉर्डर मैनेजमेंट IBG हो गया, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, और साथ ही साथ इमरजेंसी लाइक आयरन डोम। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी औशिक कि जैसे इजराइल हैज दिस आयरन डोम सिस्टम इंस्टॉल्ड, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच इज दैट सिस्टम इंस्टॉलेशन बीइंग इंस्टॉल्ड इन इंडिया, हाउ मच इज इट सूटेबल for the Indian, the condition and the nitty-gritties around that? So do you think that it is suitable if India also goes ahead with deployment of Iron Dome? First of all, Iron Dome, the cost of the Iron Dome is very huge. Each missile cost of Gaza is around 50K and Iron Dome is approximately 300K. So the mismatch between the Iron Dome economic of scale and Gaza missile is मतलब high. So India does not need any Iron Dome. It needs a different kind of system, जैसे laser system हो गया, integrated camera, because we are not facing the issue of missile attack on India जो वो फेस करते हैं, इसराइल फेस करते हैं। हम लोग अगेंस्ट पाकिस्तान मिसाइल अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वी विल यूज डिसप्रोपोर्शनेट मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान अगर ऐसा होगा तो हम लोग पास टोटली डिफरेंट चैलेंजेस है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है आयरन डोम। एंड रिगार्डिंग द बैलिस्टिक मिसाइल, ऑलरेडी वी हैव अ BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और उसको ऑपरेट किया जा रहा है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे। फिर ओवर मुझे में एक चीज वो बोलनी है कि ओवर रिलायंस ये नहीं होना सिक्योरिटी चाहिए ब्रीच इन ह्यूमन इजराइल का जो ये टॉपिक है, मतलब ये ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा शेड कर रहा है। तो 3-4 एरियाज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ खाली बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वही नहीं मैं बात कर रहा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जैसे कि उसके बाद डाटा सिक्योरिटी है, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी है। किस तरीके से बॉम्बे के मेट्रो स्टेशन पे लाइट काट दी जाती है 24 घंटे के लिए, ट्रेन सिस्टम जो शट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम खाली रिलायंस नहीं तो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे, लेकिन ओवर रिलायंस नहीं कर सकते हैं। हमें कैपेसिटी डेवलपमेंट हमारी वर्क फोर्स और मैनुअल लेबर का भी करना पड़ेगा।
मैनुअल हाँ वही पर्सनल बोल का रहे भी थे। करना पड़ेगा। और इससे आप कनेक्ट करिएगा क्या चीज से, ईवी से कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग जो फास्ट मूविंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल तरफ जा रहे हैं, हमारा लाइट कट गया और पावर ठप हो गया, तो आपके पास पूरा ट्रांसपोर्टेशन हब ही ठप हो जाएगा, मतलब पूरा ब्लॉकेड हो जाएगा। हाँ, फिर तो उसके आई मल्टीप्लाई थिंक वी आगे नीड डीजल एंड पेट्रोल एटलीस्ट। तो आज भी जो जो रेलवे है, ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, लेकिन देयर आर ट्रेन्स दैट इज यूजिंग डीजल एंड ऑल्सो द डीजल, यस कोल तो नहीं है, ड्यूअल instead इंजन of है। डीजल, diesel, हाँ डुअल we इंजन use वो भी green है fuel आजकल। use कर सकते हैं. We यही can कह have रहा हूँ like hydrogen, we can have fuel cell technology instead of being हाँ हाँ, still using petrol मतलब and diesel. डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए हाँ टेक्नोलॉजी का भी, हाँ, not कि just हाइड्रोजन भी है उसमें reliance भी। on again electric vehicles नहीं होना चाहिए. एक छोटा सा वर्ड केस में है कि इलेक्ट्रिसिटी रिटर्न्स टू छत्तीसगढ़ विलेज आफ्टर 20 years, मतलब 20 years आफ्टर मॉइस्ट डिस्ट्रॉय नेटवर्क। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो पता चलता नहीं है कि हाउ मॉइज्म इज डिस्ट्रॉइंग द लोकल पीपल, और मतलब उनका लाइफस्टाइल और कैसे वो हैम्पर करता है डेवलपमेंट को। तो क्या करना चाहिए, तो टू प्रोन स्ट्रेटेजी है फॉर इंश्योरिंग सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द विलेजेस बाय सेटिंग अप security camp and building trust towards the government. So this can happen through the constant interaction between the commandant and local people, SP, local SP and local people, and workshop also. We can take workshop also. And second is we can make road and electricity will follow. वही बात है, 2 years, तो ये दो एरिया से कर सकते हैं। So So basically, I this think system Oshik, I doesn't would like need so I would much like to give security. one example in this area, like commandant directly लोगों से मिले. The similar strategy was used, uh, I think one decade before in the state of Northern Andhra and Chhattisgarh and some sort of Orissa, where such kind of things were done when the commandant and the police officers tried to induce the villagers so that to provide them information. What was the repercussion seen that uh, the Naxal and the extremist wore the camouflage dress, came amongst these villages, and they provided a wrong information that led to mass killing of our security personnel. So मुझे ऐसा लगता है कि already we have some arrangements to take into confidence these people, और इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से अगर हम जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। और इसी के साथ हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको, और जो बेसिक गवर्नेंस है जैसे फूड है, बेसिक अमेनिटीज है, हाउस है, हेल्थ है, वो अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को हमारे पे विश्वास होगा, रादर की कमांडेंट जाके और मतलब उनको नहीं बताए, तो उसमें थोड़ा कमांडेंट, सिक्योरिटी कंसर्न हाँ है। हाँ कमांडेंट हर बार थोड़ी जाते हैं, मतलब कि कुछ फैसिलिटेशन करना है, लोकल एसटी वुमेन कोई प्राइज जीती है, या फिर जा करके छोटा वर्कशॉप करना, वहां पर जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंटीरियर्स ऑफ द विलेज, आखिरकार जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, कभी कभी आपको जाना, कमांडेंट का ऐसा होता ही है कि महीना में आपको 2-3 आपको विलेज के अंदर जाना ही है और रिपोर्ट करना है, अटेंडेंस मार्क करना है। कमांडेंट का और एसपी का इसमें भी अब वैसे ही है। एक हाँ गवर्नमेंट ने क्या अच्छी पहल की है कि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं बाय द पुलिस अथॉरिटीज, दे आर मेड इनटू द पुलिस डिपार्टमेंट ओनली, उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। सो दैट इज अ गुड स्टेप। So now here, I guess Pravesh can तो take this economy page. WTO आप उठा लीजिए, आई थिंक। फाइन, प्रवेश। हाँ ले रहा हूँ। सो food stock holding, e-commerce tax on WTO meet agenda. So basically these are two integrated topics which will be taken. So senior official जो है वो WTO की जो जेनेवा में मीटिंग होगी उसमें मिलेंगे। तो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, एंड इट विल बी अ 2-day मीटिंग ahead of 13th ministerial conference of the WTO, जो कि अबू धाबी में होगी नेक्स्ट ईयर। तो G20 डिक्लेरेशन, अगर जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो हमें प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ भी, उसके अंदर इम्पीटेंस है, रूल बेस्ड मल्टीनेटरलिज्म की वो बात करती है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करती है, एंड कुछ इसमें अब जो फॉर्मल चीजें हैं जैसे कि जनरल काउंसिल जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WTO की, एंड developing countries already have a peace clause that was agreed at the Bali ministerial meetings in 2030. So I would like to give two examples
First is the Bali ministerial meeting, and another one is the Doha meeting. These are considered as a controversial issue between the global north and global south, where the both developed and the developing and underdeveloped countries came at forefront on the agricultural issues, on the industrial issues, on the trade liberalization issues, and as well as on the trade dispute settlement body, which the India is not signatory of. So the e-commerce taxation is being discussed in detail by the officials. तो ई कॉमर्स टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो OECD also have, EU also have, so India is also having its own e-commerce taxation mechanism. So e-commerce companies के ऊपर हमें टैक्स लगाने की जरूरत है, and we are heading towards a global minimum tax also on various multinational e-commerce companies who are operating. Then there are other provisions in this issue, and food stock holding is also a major concern as far as the WTO trade talks are concerned. I would like to add 2 to 3 points कि कहाँ कहाँ पर पीस क्लॉज का इशू हो रहा है बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. फर्स्ट इज अ जेनरिक मेडिसिन और जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है वहां पर. सेकेंड इज द एग्रीकल्चर सब्सिडी. थर्ड इज ई कॉमर्स, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा सॉवरेनिटी. ये 3 एरियाज है जहां पर ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ के बीच में कंसर्न है, मतलब तो आपस में डिबेट होता है हमेशा इन द डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट. मानसी आपको कुछ इसमें? नहीं, ठीक है, सारी चीजें यहाँ कवर हो गई. एक टॉप ऑफ पेज पे एक और आर्टिकल औशिक वो भी ले सकते हो, ये फॉरेक्स स्वैप वाला. ठीक है. So to release 40,000 crore of rupee liquidity into banking system, the Forex swap maturity bank gets ready to return $5 billion to RBI. So swap mechanism basically हमारा अभी फिलहाल में जापान के साथ है, and with Singapore also I think we have, if Mansi assures that. So with 5 billion Forex swap between the RBI and banks and to mature to a day, majority of lenders have arranged for dollars to be delivered to the RBI. So this swap auction where the US dollars and Indian rupees will be sell and buy swap will happen, and under this swap the central bank जो है वो sold करता है dollars to banks with an agreement to buy back those dollars at a maturity. So basically it's a kind of credit facility which is done like आज हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन एक certain date पे जब ये mature हो जाएगा we will take it back. The market is completely covered, arrange dollars to deliver to the RBI. Absorption of 5 billion Forex swap by the RBI will release 40,000 crore of rupee liquidity into the banking system. So this is a step to robust the functioning and the credit availability in the banking system in India. हाई डिमांड्स है डॉलर की जो क्रिएटेड हो जाती है टेम्पररी डॉलर लिक्विडिटी शॉर्टेज के कारण हमारे बैंकिंग सिस्टम में, एंड उसको ये डील करने के लिए एक आरबीआई का इनोवेटिव स्टेप है. Then Forex dealer said it is the RBI which is supplying dollars to market through select banks. उसके बाद बैंकर्स के भी अपने अपने कुछ इसमें कंसर्न्स हैं. The announcement to conduct the swap came at a time when the Russia-Ukraine court policy makers and central banks worldwide caught off guard. In the immediate aftermath of the war, global commodity prices increased, led by oil, global financial markets. So basically, this is showing that how the international events are creating volatility in the dollar availability, which is leading the central banks of different countries to have these Forex swap facilities with their domestic as well as with the international banks to ensure the credit availability in their economy. Okay. We have already talked about the downsizing of diplomatic staff and 1961 Vienna Convention. वो तो बस ये पता होना चाहिए कि what is Vienna Convention. Vienna Convention on Diplomatic Relation is a United Nations treaty that has set some common principle and how country must treat each other diplomatic representative to ensure friendly relation and maintain proper communication channel. तो one example is diplomatic immunity. आपको कुछ नहीं हो सकता अगर आप डिप्लोमेट है दूसरे कंट्री में, ये इम्यूनिटी होता है.
That is, laws, tax granted diplomatic are exempted. तो privilege रहता है basically diplomat का, so that diplomat can function without fear, threat, intimidation in the host country. तो पहला diplomatic immunity है, and दूसरा आपको अरेस्ट डिटेंट हाँ नहीं दूसरा, किया जा हाँ सकता। he should not be arrested, हाँ or detained. तो ये दो चीज है। 193 कंट्रीज, जैसे मानसी ने कहा था पहले, it has been ratified and it is legally binding. So Oshik, I would like to ask one question, that if it is a legally binding, treaty, so how we can ensure that the principles and the core integral, philosophy of this Vienna Pact will be ensured? हम कहाँ जाएं इसको मनवाने के लिए? इसको डिस्कस करते यूएन में ले सकते हैं, यूएनएससी हो गया या फिर आईसीजेड हो गया, और आपस में But if डिस्कस you कर will, सकते हैं, मुझे लगता है। but if you will go to UNSC, so before that, I think you I need think to have every some. procedure in the UNSC or as well as in the ICZ, there is a certain negotiation between the countries and major powers, and after that only the process or the matter is taken up in the UNSC. तो उसके पहले ही हो जाता है बात, मेरे को लगता है। ठीक, जैसे ये आप ले लेना प्रवेश अपना PSIR के लिए, सब चीज स्टेटस ऑफ द इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है इसमें ओवरऑल। ठीक। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, हाँ, credibility is the most important. This is the last article related to the Indian Express. We will take up in detail. The credibility is most important factor which when comes to EC. Then what is your comment on Revdi and electoral bond? तो ये बताते हैं कि वेलफेयर स्कीम और रेवडी दो डिफरेंट चीज है और दोनों कैन नॉट बी कंपेयर्ड, एंड दे सेड हाउ ये तो बेसिकली पॉलिटिकल बिल के बाद ही ये डिसाइड हो सकता है, तो अभी ऐसा नहीं है। सो ईसी हैव कम आउट विद सम गाइडलाइन व्हिच एडवाइज देम टू बी केयरफुल रिगार्डिंग द रेवडीज, कि डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते वोटर को रिगार्डिंग वोटिंग पैटर्न। तो एक ये हो गया, क्योंकि उनका एक आर्गुमेंट ये भी है कि अगर आप 1 किलो राइस दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से रेवड़ी नहीं हुआ, FCI में आप राशन कार्ड भी एक तरह से। हाँ तो तो बेसिकली नीतीश कुमार ने, प्रॉपर कोई हाँ डेफिनेशन नहीं है ना, आप उसको डिफाइन नहीं हाँ कर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार ने बाइसाइकिल दिया और हम लोग इसे फ्री राशन देते हैं। तो दोनों वन फॉर्म ऑफ रेवड़ी है, लेकिन कौन रेवड़ी कैसा है, इट इज अ बैड फ्रीबी, गुड फ्रीबी, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और इट इज मैटर ऑफ डिस्कस एंड डिबेट। तो अभी हो रहा है, अभी पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसे। So I think बेसिकली रेवड़ी Oshik, में I आप would like to give जैसे I हाँ would बोलिए। like to give one example कि किस तरीके से जो फ्रीबाइस कल्चर चल रहा है, मतलब अगर हम देखें तो इसकी फाइनेंशियल जो रिपरकशंस है वो ज्यादा है, जो स्टेट की जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं से हम कम कर सकते हैं तो वो एक उपाय है कि जब फाइनेंस कमीशन का जब 5 इयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जब वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्टेट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक क्लोज जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब को जोड़ना चाहिए कि जो फ्रीबाइस कल्चर जिस स्टेट ज्यादा प्रमोट कर देगा उसको जो है उस रेवेन्यू में रिडक्शन देखने को मिलेगी। आई तो थिंक ज्यादा बोल्ड स्टेप हो गया तो हाँ, दो चीजें हैं ना कि फ्रीबी कल्चर की वजह से डेवलपमेंट भी हो सकती है आई थिंक मानसी वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट।